کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ سری نگر میں جموں کشمیر عوامی فورم نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ روشنی لینڈ اسکیم میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے۔ فورم کے صدر فاروق احمد گنائی نے گپکار الائنس اور نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ پر تنقید کی۔ ان کا کہنا ہے کہ عوامی فورم گپکار الائنس کے خلاف اپنی لڑائی جاری رکھے گی۔ جو بل روشنی ایکٹ ہیں وہ ٹوٹل یہاں کی دیش کے ہت میں بل وہ نہیں ہیں، وہ یہاں کے نوجوانوں کے ہت میں وہ بل نہیں ہیں۔ اس سے یہاں کے نوجوانوں پر انہوں نے شب خون کیا ہے۔ یہاں عام جو لینڈ لاز تھے تو ان پر بھی یہ شب خون ہے۔ یہ لینڈ کہاں سے آ گیا ہے، ہم اس کا تحقیقات چاہتے ہیں۔ آج ACB اور CBI اور تمام ایجنسیوں کے سامنے ان کی فائلیں موجود ہیں۔ اب فائلوں سے ٹیبل پر رکھنے سے کوئی مقصد حل نہیں ہو جائے گا۔ اب سیدھے طور پر ان کو قوم کے سامنے ننگا کرنا ہے۔ فاروق صاحب جس انداز سے گپکار الائنس جس انداز سے آج لوگوں کو پولیٹیکل وائلنس کی طرف کھینچ رہے ہیں، میں ان کو شیم کرتا ہوں، میں ان کو مذمت کرتا ہوں۔ آج یہاں کا نوجوان بیدار ہے اور جموں کشمیر عوامی فورم ان گپکار الائنس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے اور قوم کے سامنے اصل بات ہم رکھنے کے لیے دن رات کام کریں۔ حکومت کی جانب سے مٹن کی قیمت مقرر کرنے کے بعد مٹن ڈیلرز سراپا احتجاج ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ مقرر کردہ ریٹ کو نہیں مانتے ہیں۔ سری نگر میں آل کشمیر مٹن ہول سیل اینڈ ریٹیل ایسوسی ایشن نے پریس کانفرنس منعقد کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ حکومت کے حکم نامے پر عمل نہیں کریں گے۔ سرکار سے ہماری یہ گزارش ہے کہ یہ ریٹ ناقابل قبول ہے۔ اگر یہ قبول ہوتی ہے ہمیں تو ہم نے اس ٹائم ماننا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، سرکار نے اگر یہ ریٹ نکالے تو کن گراؤنڈز پہ نکالے؟ سرکار ہمیں دکھائے کہ یہ جینون ہے، سرکار ہمیں مائل کرے، سرکار ہمیں مطمئن کرے۔ اگر یہ جینون ریٹ ہوگی تو صحیح بات ہے، ہم مان لیں گے۔ جیسے چل رہا تھا بھی ویسے ہی چلے گا۔ اس کے بعد اگر سرکار FIR بھی دے دے گی، وہ بھی کرے گی، وہ سرکار کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں وہ نہیں۔ جیسے وہ کہہ رہے کہ بھائی ہم FIR دے دیں گے، وہ کریں گے، لیکن یہ ٹرن چلتی رہے گی۔ لیکن اگر ہمارے کو مجبور کیا گیا ہڑتال کرنے کے لیے تو اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ بلیک مارکیٹنگ ہو جائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے بلیک مارکیٹنگ ہو۔ بیرون ممالک میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اکثر لوگ ترقی یافتہ ملکوں کا رخ کرتے ہیں، تاہم کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو اس کے بعد اپنے آبائی علاقوں میں ہی اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ایسی ایک مثال ہے پلوامہ ضلع کے شبیر احمد نامی نوجوان کی۔ پیش بلال خان کی یہ رپورٹ۔ پلوامہ کے سڈکو انڈسٹریل اسٹیٹ کے نجی صنعتی ادارے میں کام کرنے والا یہ نوجوان کوئی عام مزدور نہیں ہے۔ یہ برطانیہ کی یونیورسٹی آف ویلز سے MBA کی ڈگری حاصل کرنے والے شبیر احمد ہیں۔ شبیر احمد نے 2014 میں لاسی پورہ سڈکو انڈسٹریل اسٹیٹ میں کراکری تیار کرنے کا یونٹ قائم کیا تھا۔ اس سے قبل شبیر نے UK میں ڈگری مکمل کر کے ایک کمپنی میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ تاہم شبیر نے بعد میں کشمیر واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ پچھلے 6 برسوں کے دوران شبیر ایک کامیاب نجی صنعت کار ثابت ہوئے ہیں۔ وہ اب اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی روزگار فراہم کر رہے ہیں۔ میں جاب کر رہا تھا لیکن وہاں پہ لائف سیٹل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ واپس کشمیر آنے کا ارادہ تھا اور یہاں پہ کچھ ایسا کام کرنا چاہتا جس سے میں اپنے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی روزگار دلا پاؤں۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہر سال گریجویشن کرتے ہیں، پوسٹ گریجویشن کرتے ہیں۔ سب کے لیے گورنمنٹ جاب ملنا میرے خیال سے ناممکن ہے۔ تو بزنس یا سیلف امپلائمنٹ کسی بھی طریقے کا اگر لوگ چن لیں گے تو بہت اچھا رہے گا، ان کے لیے بھی، ان کے گھر والوں کے بھی اور سوسائٹی کے لیے بھی۔ شبیر نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر پہلے کراکری بنانے کا یونٹ قائم کیا۔ اس کی کامیابی کے بعد انہوں نے پلاسٹک کا دوسرا یونٹ قائم کیا۔ اس وقت ان کے دونوں یونٹوں میں 50 سے زائد مقامی اور غیر مقامی افراد کام کر رہے ہیں۔ 3 ؤری کٲم کران تو امہِ برونٛہہ حظ ٲسۍ بے روزگار، اَسہِ حظ اوس کانٛہہ روزگارا۔ پتہٕ حظ أسۍ چھِ پنٛنہِ سر سُنٛد واریاہ شُکُر گُزار۔ أسۍ حظ چھِ ییٚکیٛاہ یِم ٹرٛاے بناوان، لاڈٕج ٹرٛاے بناوان، کواٹر، سٹار، ٹرپل کوٹ، اَتھ حظ چھِ وَنان آرچٲڈ، لاڈٕج تہِ مان ژٕ واریاہ آیٹم حظ چھِ أسۍ ییٚتہِ بناوان۔ میں یہاں 6 سال پہلے آیا تھا اور 6 سال سے کام کر رہا ہوں۔ سب مل جل کے کام کر رہے ہیں، کشمیری بھی ہیں اور بہار کے بھی ہیں، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ کام ملا اور اچھا کام مل رہا ہے، پیسہ بھی اچھا مل رہا ہے۔ ضلع پلوامہ کی لاسی پورہ سڈکو انڈسٹریل اسٹیٹ میں اس وقت تقریباً 400 کے قریب انڈسٹریل یونٹ چل رہے ہیں۔ وادی کشمیر میں اب نجی صنعتی ادارے کچھ حد تک فروغ پا رہے ہیں۔ یونٹ مالکان کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کا صنعتی اداروں کی طرف راغب ہونا کافی حوصلہ افزا ہے۔
इनका ताहम कहना है कि वादी में निजी सनअती यूनिटों को अभी भी काफ़ी मसाइल दरपेश हैं। जैसे हमारे यहाँ पे बाकी यूनिट होल्डर्स है या यहाँ की एसोसिएशन है, ठीक है, काफ़ी सपोर्ट कर रही है। हाँ, ऑल्दो की बहुत सारी अभी भी डिफ़िकल्टीज़ है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब जिस हिसाब से बाकी स्टेट्स में या बाकी कंट्रीज़ में काम हो रहा है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के हिसाब से, इतना कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे शायद हो जाएगा। वी आर होपिंग कि आगे जाके ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बूस्ट इस तरीके से मिल रहा है, जो हमारे नौजवान हैं बेकार पड़े हुए उनको हमें रोज़गार मिल रहा है। इस नए कारखानों की वजह से जो ये हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, वेल क्वालिफाइड आ रहे हैं, उनसे हमें बूस्ट मिल रहा है। इनको बहुत अच्छा मतलब तजुर्बा भी हो गया है, जो टू जिस अलबत्ता प्रॉब्लम इन जवानों में इस वक्त ये प्रॉब्लम है, जो ये नेट फैसिलिटीज़ यहाँ पर 4G ख़त्म हुआ है 5 अगस्त से लेकर, उससे इन बेचारियों की बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। वादी कश्मीर में बेरोजगारी एक संगीन मसला बन गया है। ऐसे में तालीम याफ्ता नौजवानों का निजी सनअती यूनिट कायम करने का रुझान काफी अहम है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पुलवामा से बिलाल खान की रिपोर्ट। 70 साल बाद जम्मू कश्मीर में वोट डालने का हक मिलने के बाद वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज ने सांबा में जश्न मनाया। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को आने वाले DDC इंतखाबात में वोट डालने का हक हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि मरकज ने इलेक्शन के दौरान जो वादे किए थे उनको पूरा किया है। जे हम जो DDC जो हमारी जो इलेक्शनें होने जा रही हैं जहाँ पंचायत की, हम चाहते हैं कि जो दबे कुचले लोग जहाँ वो बाहर आएँ। तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि हमारे से दबा कुचला कोई नहीं है। 73 वर्षों से सिर्फ अगर दबे कुचले हैं तो वो सिर्फ वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं। तो आज हमारे को अगर ऐसा मौका मिला तो मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि आज हमारे परिवारों को भी ऐसा मौका दिया जाए। आज हमारा जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो रहा है और उसका जो श्रेय जाता है हमारे लबाराम गांधी जी हैं, हमारी जो कमेटी है, हमारे जो लोग हैं वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी के, इन्होंने बच्चे ने इसका हमें हमारा साथ दिया है और उसी का रिजल्ट है कि आज हम इस दिन पर पहुंचे हैं। राज्यसभा मेंबर नज़ीर अहमद लावे ने पंचायती इंतखाबात मुनक्किद कराने को खुश कदम करार देते हुए इसे जमहूरी अमल को मजबूत बनाने की अहम कड़ी करार दिया। उन्होंने कहा कि वोट लोगों का हक है और इससे ज़मीनी सतह पर जमहूरियत मजबूत होती है। जहाँ पर हमारा जो कानून है, जो लॉ है, वो एक पॉलिटिकल और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे मुल्क में। इस मुल्क में इलेक्शन लाजमी है। तो अगर ये इलेक्शन जो पहले हुए हैं इलेक्शन और आज जो DDC के इलेक्शन होने वाले हैं, जो कल अनाउंस हुआ, उसको मैं वेलकम करता हूँ। और मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से कि उन लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब लोग इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे तो डेमोक्रेसी मजबूत हो जाएगी। लिहाजा मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से कि अच्छे लोगों को आगे आने चाहिए, और जब अच्छे लोग आगे आएंगे तो उन लोगों का कुदरती तौर पर काम हो जाएगा। सीनियर सियासी लीडर और चेयरमैन यूथ डेवलपमेंट फोरम ने तालीम याफ्ता नौजवानों से अपील की है कि आने वाले पंचायती ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लें। फारूक गांदरबली ने कहा कि सियासी लीडरों ने हमेशा गांदरबल के अवाम को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ज़िला गांदरबल तरक्की से महरूम रह गया। जब इलेक्शन का डेट फिक्स हुआ, ठीक है ना, कल तो किसी ना किसी को मैदान में उतरना है ना। अगर अच्छे लोग, आप जैसे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग इसका हिस्सा नहीं बनेंगे तो फिर वही लोग चुन के आ जाएंगे जिनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता। श्रीनगर में आज महिला कांग्रेस ने एक कन्वेंशन मुनक्किद किया। इस कन्वेंशन के दौरान कांग्रेस की खवातीन लीडरान ने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क में खवातीन और दलितों के हुकूक पामाल हो रहे हैं। उन्होंने मरकज़ पर निशाना साधा। पार्टी की महिला विंग की कई कारकुन मौजूद रहीं। ये महिला एंड दलित उत्पीड़न दिवस के तौर पे मनाया गया है, जो यहाँ पे महिलाओं के साथ जब से ये सरकार आई है उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, लेकिन देखने को मिलता है वो तो ख़त्म ही हो गया। हमारी बहनों के साथ ऑल ओवर इंडिया में शोषण ही हो रहे हैं, और अगर शोषण भी हो रहे हैं और सज़ावारों को सज़ा भी नहीं दी जाती है। कश्मीरी माइग्रेंटों का एहतजाजी धरना आज भी जारी रहा। गुज़श्ता 1 महीने से ज़्यादा अरसे से ये माइग्रेंट जगती नगरोटा में एहतजाजी धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि इनके माहाना रिलीफ में इजाफा करने के साथ साथ हर घर को सरकारी नौकरी फराहम की जाए। धरने के मुंतजिम शादीलाल पंडिता का कहना है कि रिलीफ को 25,000 किया जाए। साल के बाद भी आपका रिप्रेजेंटेटिव
कश्मीरी पंडितों को देखने के लिए नहीं आया और हम 35 दिन से आज इस स्ट्राइक पर है, भूख हड़ताल भी किया और सड़कों पर है। हमारी मांग है रिलीफ को बढ़ाया जाए और जिन घरों में नौकरी नहीं है उन घरों में एक एक नौकरी दी जाए। हम कश्मीरी पंडित वादी कश्मीर में रहना चाहते हैं और 1 लाख से ज़्यादा फैमिलियां हम हैं जो 1990 से कश्मीर से निकले हैं। मिलिटेंसी की वजह से मिलिटेंटों ने निकाला है और एग्जाइल में है। पुलिस जैसे महकमे में रहकर अदब और शायरी से वाबस्तगी बरकरार रखना कोई आसान काम नहीं है। कश्मीर के मनोज कुमार पंडिता न सिर्फ अच्छी शायरी करते हैं बल्कि अफसाने और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते हैं। कल्चरल एकेडमी की जानिब से इनकी म्यूजिक सीडी को जारी किया गया। इस मौके पर मशहूर गुलकार शाजिया बशीर ने इनके लिखे गीत पेश किए और हाजरीन को महसूस किया। कोशिश की है ओवर द ईयर्स, जब से भी मैंने शुरू किया, चाहे ड्रामा लिखा, चाहे मैंने शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी, कोशिश की कि कश्मीर के बारे में, कश्मीर के लोगों के बारे में लिखूं। और वही मैंने इन गीतों में भी कोशिश की है, कश्मीरी गीतों में कोशिश की है लिखने की। मैं एकेडमी का और अपने पुलिस का दोनों का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि मुझे इन्होंने ये वक्त दिया और साथ में मेरी कोशिशों में अपना हाथ बटाया। उस विरासत को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं, जिस विरासत को हम आहिस्ता आहिस्ता खो रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है जो आज हमने इनकी सीडी रिलीज़ की, जिनको कश्मीर के बहुत मायानाज गुलकारों ने गाया है। मुझे लग रहा है कि एक जो कश्मीरी ज़बान के साथ आप देख रहे हैं कि फिर से एक रिन्यूड इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, उसको एक और तौक़ीयत मिलेगी। मराज अदबी संगम और जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के इश्तिराक से वुमेंस डिग्री कॉलेज अनंतनाग में प्रोफेसर गुलाम रसूल शाद की बरसी के मौके पर एक अदबी प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। गुलाम नबी आतिश, रफ़ीक राज और कॉलेज प्रिंसिपल अली मोहम्मद डार के अलावा कई सरकर्दा अदीबों, शायरों और फनकारों ने शिरकत की। मारूफ महक़िक़, शायर व अदीब प्रोफेसर शाद को खराज अक़ीदत पेश किया गया। अंजमन शेर व अदब की जानिब से मारूफ ब्रॉडकास्टर व अदीब रफ़ीक राज को खिलत शाद से नवाजा गया। अपने दौर के सबसे बड़े मुअर्रिख़, कश्मीरी ज़ुबान के सबसे बड़े अदीब, शायर, मुहक्किक़, दानिश्वर शाद साहब थे। शाद साहब ने कई अंजुमनों के लिए भी काम किया। उन्होंने हर छोटे बड़े हर किसी शायर को हौसला अफजाई की। मराज अदबी संगम को मजबूत बनाने में उनका अहम रोल रहा है। चाहे वो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो हिस्टोग्राफी ऑफ कश्मीर हो, तो मैंने 7 किताबें शाद साहब के वसादत से ही लिखी हैं और मैंने कोशिश करी है कि उनको मैं एक्नॉलेज करूं। एक किताब मैंने डेडिकेट करी है शाद साहब को, तो जिसकी वजह से उसका जो इंटरनेशनल मार्केट है तो मैं उसको एड्रेस करने में कामयाब हुआ। तो वो भी मुझे शाद साहब ने। शाद साहब जो उर्दू अदबुक बेहतरीन शायर, बर सगीर का बेहतरीन शायर था और मुहक्किक़ था। फ़र्दन चाहिए, उनके स्टूडेंट्स को चाहिए कि उसकी जितनी भी जो कुछ उसने तहकीक किया है उसको मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। और जो उनकी तालीमात थी, कोता ज़रीफ़ इंसान और शाद साहब, बिल्कुल कोशर, दिल साफ़, बड़ा मज़ाहिया आदमी था। वो बड़ा मजाक में अच्छी बातें कर जाता था। मशरूम कल्टिवेशन को फ़रोग़ देने की गर्ज से सरकार इक़दामात उठा रही है। इस सिलसिले में मशरूम डेवलपमेंट से वाबस्ता अफसरान ने कामेट समेत दयालगाम में कई मशरूम फार्म सेंटरों का मुआयना किया। मशरूम फार्मिंग के लिए सरकार की जानिब से मुरतब शुदा स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। फार्मिंग से मुंसलिक अफराद का कहना है कि ये खुद रोज़गार कमाने का एक अच्छा ज़रिया है। ज़फ़रान रिसर्च सेंटर दसू पामपुर में यौम ज़ाफ़रान मनाया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह वाइस चांसलर स्कॉट्स कश्मीर मुश्ताक अहमद ने किया। प्रोग्राम में किसानों की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। ज़ाफ़रान की पैदावार को बढ़ावा देने की गर्ज से नई टेक्नोलॉजी के हवाले से किसानों को आगाह किया गया। आखिर में एक किताब की रस्म रुनुमाई भी अंजाम दी गई है। करगून बटालिक में मुनक्किदा 5 रोज़ा बुनोना मेगा हार्वेस्ट फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया है। चेयरमैन LHDC फेरूज़ खान का कहना है कि तमद्दुनी और सकाफती त्यौहार उनका एक अहम जुज़ है। आर्यन वैली के करगून और धामे बुनोना चोपो 70 बला मेगा हार्वेस्ट फेस्टिवल हर 3 साल के बाद रिवायती तौर पर बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। तमाम लोग अपने सकाफती लिबास पहनते हैं। आर्यंस की हिजरत और वादी में क़याम के मबनी 18 गाने गाए जाते हैं।
خان کا کہنا ہے کہ علاقے میں انتظامیہ سیاحت کو فروغ دینے اور سیاحوں کو ہر طرح کی سہولت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سدبھاونا پروجیکٹ افسر بیاما بریگیڈ کے کرنل دنیش چوہان، اے ڈی انفارمیشن کرگل محمد علی ٹاگ بھی موجود رہے۔ آرین ویلی کے جو ہمارے یوتھس ہیں انہوں نے اس اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے آلریڈی بہت سارے اسٹیپس اٹھائے ہیں جو انہوں نے پرپوزلس میرے پاس رکھے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آرین ویلی میں جتنے بھی دیکھیے صرف کلچر جو ہے کلچر کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے آپ کا ٹورزم، ہم کلچر یہ جو آرین کا کلچر ہے اس کو ہم ٹورزم کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ ان کا جو کلچر ہے وہ پرزرو بھی رہے، پروموٹ بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اکانومی بھی بوسٹ ہو۔ اور ہم یہ چاہیں گے کہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ آئے، ان کے لیے ہمارا کام ہے کونسل کا یا ایڈمنسٹریشن کا ان کے جو انفراسٹرکچر جو ہے ڈیولپ کرنا ہے۔ انفراسٹرکچر مینس روڈ ہے، کنیکٹیوٹی ہے، پانی ہے، بجلی ہے۔ وقت ایک اور بریک کے بعد پھر لوٹیں گے۔